इन आर्गुमेंट राइटिंग हमेशा हम ये देखते हैं कि पकड़ लो कोई भी टॉपिक है, सो वी आर राइटिंग इन फेवर। तो फेवर में कोई चीज लिख रहे हैं, तो ये चीज सही है, ये बोलने के लिए अब तक कैसी चीजें गलत थी और इसलिए ये सही है, या फिर ये नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा। मतलब सम हाउ वी ट्राई टू कन्विंस द एग्जामिनर कि यस, हाउ दिस इज फाइन। बट मोर देन द रिटन पार्ट, एक्चुअली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि किस तरीके की चीजों के बारे में सोचा जाना चाहिए, विच यू कैन, ठीक है, एंड यू कैन राइट अ बेटर आर्गुमेंट्स। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड जस्ट सी व्हाट इट इज। Hello friends, welcome to AVKs. In the series of our paper 2 discussions, we'll be continuing with the argument writing part, right? पिछले दो सेशंस जिसमें हमने आर्गुमेंट राइटिंग देखा था, so we discussed the topics, but our main focus is not the topic. Our main focus is how to deal with the topic, even though we are not having enough information on that topic. If we have enough information, then we already know the format and we can write in a better way. उससे भी ज्यादा बढ़कर what is more important कि हम सोचते कैसे हैं। इन आर्गुमेंट राइटिंग हमेशा हम ये देखते हैं कि पकड़ लो कोई भी टॉपिक है, सो वी आर राइटिंग इन फेवर। तो फेवर में कोई चीज लिख रहे हैं, तो ये चीज सही है, ये बोलने के लिए अब तक कैसी चीजें गलत थी और इसलिए ये सही है, या फिर ये नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा। मतलब सम हाउ वी ट्राई टू कन्विंस द एग्जामिनर कि यस, हाउ दिस इज फाइन। ऑन द अदर हैंड, इन अगेंस्ट वी जस्ट ट्राई टू प्रूव अदरवाइज। बट इसमें ना अभी लाइक आई टेक एन एग्जांपल अगेन एंड विल डिस्कस दैट विद एग्जांपल। This time things are printed actually, because the examples are from the book published by AVKS every year, the paper 2 book. But more than the written part, actually I would like to talk about कि किस तरीके की चीजों के बारे में सोचा जाना चाहिए, which you can, ठीक है, and you can write a better arguments. So let's not waste time and just see what it is. So the topic is, मतलब recently we already know that this 2021 census has already been delayed. It is now 2025, ठीक है, but still it has not been acted upon. But there are news that government is planning to include caste census. मतलब अभी की न्यूज है, ठीक है, 1 May 2025 का न्यूज है कि गवर्नमेंट इज has given its nod to include caste census. So the chances are good that you're going to ask this in this coming exam, right? So topic है caste census, a double-edged sword. Now already we know that in argument writing we give a simple basic introduction of 2 to 3 lines, and in most of the cases it is expected that we write definition along with why the specific news, why the specific topic was in the news. The same thing is done here. Obviously आपको ये लिखना नहीं है ना, डायरेक्टली स्टार्ट करना है विद द पैराग्राफ। अ कास्ट सेंसस इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स विद इन द पॉपुलेशन टू अंडरस्टैंड देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। सिंपल बेसिक डेफिनेशन। इतना आपका मतलब जो बेसिकली हिंदी मीडियम या रीजनल मीडियम के स्टूडेंट्स है, उनके पास इतना एकदम स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज नहीं भी होगा, तो भी हमको इतना समझ में आता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना, ऑफ वेरियस सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स इन इंडिया, ठीक है। While proponents argue that it helps in reducing inequality and making policies more effective, opponents warn about the dangers of social fragmentation and political misuse. मुझे लगता है कि somehow इतना तो बेसिक है कि हम इतना लिखते हैं कि भाई डिबेट में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन इट्स नॉट, यू कैन राइट दैट, ठीक है। और जो प्रोपोनेंट्स है उनका ये बोलना कि यस, इट विल हेल्प better implementation of the policies, but those who oppose, they are concerned about the political misuse. The recent Bihar caste survey has reignited the debate on whether India should conduct a nationwide census. But as I have told you already, the central government has given its nod. So you can write that too in the introduction. So simply you can write the definition and say that recently central government has given its nod to conduct caste census in upcoming 2021 census, because of which this debate is again came to limelight. So the first argument in favor. तो भाई अभी हमको फेवर में क्या प्रूव करना है कि यस, कास्ट सेंसस इज गुड। हाउ? फर्स्ट, एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटी। Many marginalized communities continue to face discrimination and economic hardships. A caste census would provide precise data on their socio-economic conditions, helping the government design targeted welfare schemes. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली और बेसिक बात है कि आज जब भी हम ये बोलते हैं कि एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वी डोंट हैव डेटा, प्रॉपर डेटा। तो हम लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअली कौन मार्जिनलाइज्ड है। तो एक बार ठीक से कास्ट सेंसस कर लेंगे, सो विल नो द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। एग्जांपल,
अब यहाँ मुझे ये बताना है, ये जो दिया हुआ है ना वो तो रेडीमेड है, वो तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा या फिर आप कुछ किताब, खैर यहाँ वो बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया है, बट try to understand what I'm trying to teach you. Writing example is very important. You don't have to write the word example actually. You can just start writing. The NFSA provides subsidized food grains based on economic status and better caste data can enhance its reach. तो चीजों को रिलेट करके एग्जांपल लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट पॉइंट में हमने सिंपली ये लिखा है कि अगर हमें पता है कि कौन सही मायने में मार्जिनलाइज्ड है, जो कि हमको पता चलेगा बिकॉज ऑफ कास्ट सेंसस, वी कैन इंप्रूव or we can be good at targeted welfare schemes. The second point is evidence based policy making. With proper data, policy making often relies on without proper data, policy making often relies on outdated estimates. A caste census will offer a factual basis for making reservation and other affirmative actions programs more effective. The Mandal Commission's recommendations for OBC reservation were based on data available at that time, but an updated census could refine these policies. अभी आप सोचो कि ऊपर भी वही लिखा है नीचे, लेकिन अभी क्या किया है, थोड़ा सा पास्ट में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन वी डिड इट, बट दैट वाज बेस्ड ऑन data of that time. Now we need to do it again because it has been a long time, and now if we do it, we can, like, it can help us in better policy making in general. तो क्या लिखा है हेडलाइन, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग. अगेन लेट मी टेल यू, it is not compulsory for you people to give sub headings. You can directly start writing the point, and whatever is the crux of the point you can just underline. ठीक है, क्योंकि हर बार मतलब टाइम कम होता है और उतने कम टाइम में आप इतना सोच नहीं पाते. थर्ड इज रीअसेसमेंट ऑफ रिजर्वेशन. Some caste groups might be overrepresented in reservation benefits while other remains under-reserved. और ये बहुत सारी जगह है कि कुछ कास्ट जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा बेनिफिट हर चीज का ले लिया एंड स्टिल दे आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स बिकॉज दे नो हाउ टू डू इट, राइट. लेकिन फिर बहुत सारे जो डिजर्विंग है, लैक ऑफ अवेयरनेस या जो भी है उसकी वजह से वो पीछे रह गए. तो एक बार फिर से अगर कर लेंगे तो ये ओवर रिप्रेजेंटेशन और अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है वो खत्म हो जाएगा और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्वेशन कोटाज मोर इक्विटेबली होगा. एग्जांपल के तौर पे कास्ट सेंसस कैन हाईलाइट व्हिच ग्रुप्स हैव प्रोग्रेस सोशियो एंड व्हिच स्टिल रिक्वायर अफर्मेंट. ये वही रिपीटेशन है, रिड्यूसिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर्स. ठीक है, इतना भी लिख दिया, रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर्स काफी है. Sometimes the point itself is logically so correct that you don't have to write example, but at least starting वाले एक दो points में example लिख दो तो creates a good impression on the examiner. ठीक है, तो यहाँ simply ये जो लिखा है ना कि कुछ केस में it is over represented and कुछ केस में it is not, इतना ही काफी है. ठीक है, अगर उसका कुछ specific example होगा तो you can write. ठीक है, tackling intersectional discrimination. Disadvantages based on caste often intersect with gender, religion, and regional disparities. A caste census will highlight these overlap, leading to more comprehensive policy solutions. जब आप सब हेडिंग देते हो तो उसके अंदर इतने सब पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है. सब हेडिंग के अंदर एक ही चीज के आगे, मतलब पकड़ लो ये लिख दिया, इसके आगे तुरंत लिखो डिसएडवांटेजेस, लिख दिया है डिस्पैरिटीज के बाद तुरंत लिखो कास्ट, मतलब नेक्स्ट लाइन. यू डोंट हैव टू मेक इट मोर सब पॉइंट्स, एक ही पॉइंट लिखो काफी है. अभी देखो फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन एग्जांपल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कि नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों को पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों चल रहा है, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, कुछ केस में देर आर सम कास्ट ग्रुप जिन तक वो पहुंच ही नहीं रहा है एंड दे आर स्टिल वल्नरेबल. तो क्या हो जाएगा कि ये जो इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन है, पकड़ लो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक कास्ट, लेकिन वो कास्ट के लोग रूरल इंडिया में ज्यादा है, अर्बन इंडिया में ज्यादा है, तो रूरल इंडिया में है तो कौन से एरिया में है, किसको ज्यादा जरूरत है, किसको कम जरूरत है ना, ये हम कर सकते हैं. तो ये सारा डेटा जो है वो एक बार वापस रिफ्रेश होना जरूरी है. And the fifth point, which I personally like too much, why? Because it helps any student who is not aware about this much information. अब ये तो बहुत आइडियली लिखा है, तो even though I'm reading it and you people are feeling yeah everything is right, but actual एग्जाम में ऐसा होगा क्या, एक्चुअल एग्जाम में हमको इतना सब कुछ याद आएगा क्या. ये जो है ना, जिस तरह से अभी आप तुरंत इस लेक्चर को पॉज करके खुद से एक बार ये सारे पॉइंट्स बिना देखे लिखने की कोशिश करो, तब भी आपके सारे पॉइंट्स सही से नहीं आएंगे, सब कुछ दिमाग में मिक्सअप हो जाएगा और ऐसा लगने लगता है फिर कि सारे के सारे सिमिलर ही तो है, इसमें फर्क क्या है. देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वर्डिंग्स प्लस व्हाट इज एक्सपेक्टेड, माइनर डिफरेंस. लेकिन ऐसे आइडियली पढ़ना और एक्चुअली लिख के देखना, इसमें फर्क है. और इसीलिए क्या करना है, वो पॉइंट्स का सपोर्ट लेना है जो पॉइंट्स कभी भी आपके साथ रहेंगी. जैसे कि आर्टिकल 340 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी बोला है कि बैकवर्ड क्लासेस पे डेटा होना चाहिए. आर्टिकल 340 बोलता है कि आइडेंटिफाई एंड असिस्ट सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड ग्रुप्स, और कास्ट सेंसस विल हेल्प इट टू डू. ठीक है, कास्ट सेंसस क्या करेगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसी को स्ट्रेंथन कर रहा है, राइट. तो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज क्या है, स्टैटिक है. आपको आर्टिकल 340 पता है तो आपको सिंपली ये लिखना है कि सर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बोला है कास्ट सेंसस की वजह से वो अचीव होगा, इतना लिखना बहुत बड़ी बात. ठीक है, सो दिस आर द 4 पॉइंट्स, अगेन दिस आर 5 पॉइंट्स.
आपको इसमें से कोई भी 4 याद रह गए तो भी काफी है. Sometimes you might find it repetitive, right? But it is not compulsory to write 5 of them. If you write even 3 good points with good examples and point like this, which is a static point, more than enough. Then comes the against argument. Again, everything is not rosy. Risk of social fragmentation, very normal. एक बार आपने कास्ट के बेसिस पे लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, what is going to happen? ऑलरेडी जो डिवीजन है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और कास्ट बेस्ड टेंशन बढ़ेंगे. जो हम लोगों को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन नेशन, उसमें फिर एक बार हम कास्ट आइडेंटिटीज डाल देंगे तो ऑलरेडी क्या होगा? पोलराइजेशन होगा. The socio-economic caste census, which was conducted in 2011, faced a significant backlash due to fears of worsening caste conflicts. And in India, we have seen such things. ठीक है, the tensions. ठीक है, rise in reservation demands. A caste census may lead to an increase in demands for reservation from various communities. Groups like Patels, Jat, and Gujjars have previously demanded OBC status, and in Maharashtra, Marathas. And new data could intensify such movements. This may create challenges in maintaining a balanced reservation policy. We all know that reservation has always been a very sensitive and very controversial topic, right? So होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो भी है, कितना, कैसे, क्या, हमेशा से वो चर्चा का और डिबेट का ही मुद्दा रहा है. और अगर आप फिर एक बार कास्ट सेंसस लेके आते हैं तो सारी सोसाइटी में वही सब जो डाइल्यूटेड एटमॉस्फेयर खड़ा होने की चांसेस बहुत ज्यादा है. इसमें फिर थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट ये भी आएगा, पॉलिटिकल लोग इसका कैसे फायदा उठाएंगे. फोर्थ पॉइंट इज देयर, पॉलिटिकल पार्टीज में यूज कास्ट सेंसस डेटा टू कंसोलिडेट देयर वोट बैंक्स, लीडिंग टू डिविजिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. ऑलरेडी अभी कास्ट सेंसस नहीं है तो भी वी ऑल नो दैट इवन टुडे कास्ट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स. आज भी लोग कास्ट बेस्ड वोट बैंक्स के ऊपर आधार पर जीत रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच देयर इज एक कड़वाहट जो है वो सोसाइटी में आज भी है. ठीक है, तो कास्ट सेंसस के बाद तो और ये सब एक्सप्लिसिट हो जाएगा. ठीक है, तो सोशल जस्टिस रहेगा एक साइड में एंड इट विल बी यूज्ड फॉर इलेक्टोरल गेन्स. ये तो सिंपल पॉइंट है और ये आप विदाउट एग्जांपल भी लिखोगे तो भी इट विल हेल्प. हाँ, और ये एक चीज अभी पकड़ लो, ये चीज देखो, ये थर्ड पॉइंट ना सिर्फ पॉइंट नहीं है, ये सोचने का तरीका है. मतलब हम नहीं किसी चीज को जब अपना मुद्दा प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ इतना सही है, और फिर सडनली हम ये भी बोलते हैं चलो पकड़ लो आप जो बोल रहे हो सही हो, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना कर ही नहीं पाएंगे. तो ये मुद्दा भी ध्यान में रखना है. कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई आप बोल रहे हो कास्ट सेंसस करना, लेकिन वो करना कितना मुश्किल है. व्हाई? देयर आर रीजनल डिफरेंसेस एंड वेरिएशंस इन कास्ट स्पेलिंग्स. मेनी इंडिविजुअल्स माइट नॉट इवन आइडेंटिफाई विद सिंगल कास्ट, मेकिंग डेटा कलेक्शन अनरिलायबल. दिस कुड रिजल्ट इन इनएक्यूरेट एंड इनकम्प्लीट डेटा, रिड्यूसिंग इट्स यूजफुलनेस इन पॉलिसी मेकिंग. बहुत सारी जगह पे अलग अलग नाम है, हायरार्की जो कास्ट की है वो फिक्स नहीं है ना. सो डेटा कलेक्शन जो है वो इतना आसान नहीं रहेगा, राइट? एंड देन देयर विल बी डिसएग्रीमेंट अगेन, एंड इट विल अगेन लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, हाँ, ये जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल गेन्स है इसका एग्जांपल भी है. पास्ट इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज हैव प्रॉमिस्ड स्पेसिफिक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन टू अट्रैक्ट वोट्स, अंडरमाइनिंग द लार्जर गोल ऑफ नेशनल डेवलपमेंट. वही मैं मतलब एग्जांपल नहीं लिखते तो भी चलता. ठीक है, ऑलरेडी आपने ऊपर वही एक्सप्लेन किया है कि इलेक्टोरल गेन्स के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं. Last point is difficulty in defining caste. India has thousands of castes and subcastes. Defining them clearly is a major challenge. Without a standardized framework, caste census may lead to disputes over classification, leading to legal and political conflicts. Critics argue that this may create more confusion rather than solving socio-economic disparities. अभी ना ये चीज जो है ये यहाँ भी थी. The classification of caste is complex due to regional, लेकिन यहाँ regional variation लिखा है और यहाँ हमने लिखा है कि ऑलरेडी बहुत सारी, मतलब एक जगह पे भी कास्ट और सबकास्ट बहुत सारी है. कास्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इशू. मतलब इट्स मतलब अपने आप में ही कास्ट एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है. तो जब आप किसी चीज को मेजर करने निकलते हो तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि क्या है, लेकिन इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी है, सो इट इज रियली डिफिकल्ट टू डिफाइन कास्ट. ठीक है, सो ये सारे हो गए मुद्दे. अभी वो वाला मुद्दा थर्ड वाला और फिफ्थ वाला सिमिलर लग रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इवन इफ यू राइट 4 गुड पॉइंट्स इट्स ऑल गुड. Again, the conclusion part, as I have already told you, you can take sides or you can just be neutral and address it accordingly. कि भाई solution. A caste census is a powerful tool for achieving social justice, but it comes with significant risk. While it can help in crafting better policies and ensuring fair resource distribution, it must be implemented cautiously to prevent misuse. इतना भी लिख दिया आपने तो भी काफी है. Argument writing का conclusion is a formality. Short में लिखना है. Don't have to spend much time. We have only 18 to 20 minutes per argument. जो हम आर्गुमेंट लिखने वाले हैं फेवर और अगेंस्ट में, दे काउंट्स द मोस्ट. सो सिंपल इंट्रोडक्शन एंड सिंपल कंक्लूजन इज इनफ.
ठीक है, बाद में ये सब लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, पॉलिसी मेकर शुड बी केयरफुल, ये सब वो सब, नॉट कंपल्सरी। इसमें से कोई भी 2 लाइन उठा के आप लिख दोगे, इट इज एनफ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कास्ट सेंसस, अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। ठीक है, if you got any issue, something which you don't understand, you can ask in the comment section, let us know. ठीक है, and that's it. Thank you.